देखो, मैंने आप लोगों को बोला था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आई विल टेल यू सम स्पेशल थिंग्स अबाउट ए राइट एंगल ट्रायंगल. सो टुडे वी विल बी learning some one very useful result, that is that we can utilize directly while solving the questions. I will first of all I will show you the result, then we will do is we will utilize that result directly. Although that result is not told you मतलब ये result NCERT में ऐसे नहीं दिया हुआ. In fact, I'm not sure about other books, other reference other reference books like Artisan. I'm not sure about it, but actually it can be very easily derived. You can derive it very easily, so there is no need to give that result separately. But yes, somewhere in few places it has been given. So the result is, देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC and this triangle is right angled at B, right? This triangle is right angled at B. Now what we have done is, we have drawn a perpendicular, say BD. BD is a perpendicular that is drawn on side AC from the BD is a perpendicular that is drawn on the hypotenuse AC. Okay. Now I have to calculate. I want to find out, is there some relation between BD, AC, CD? Is there some relation between them or not? This is my just task. I want to find out. I'm not sure whether there is a relation or not, but I just want to find out whether there is a relation or not. Okay. So what we will do is, let us assume this angle ACB as theta. I hope my voice is clear and audible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. This angle is theta, angle ACB is theta. Now, if this angle is theta, okay, so this angle will be 90 minus theta. I hope there is no problem in this. If this angle is 90 degree, if angle B is 90 degree, and I have taken angle C as theta, so my angle A will become 90 minus theta. कोई problem नहीं है इसमें. अगर angle, now let me change the color, otherwise you guys will get confused. Now, if angle D is 90 degree, if angle D is 90 degree and angle A is 90 minus theta, then can I say angle, wait. Then can I say angle DBA will be equal to theta using the angle sum property of a triangle? बात समझने की कोशिश करो. यहाँ पे ये वाला एंगल जो है, this angle is 90 degree, angle A is 90 minus theta. So in this triangle, angle DBA will be equal to theta. ये बात सबको समझ में आ गई? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thanks for confirmation. Now, if my angle CDB, if this angle is also equal to 90 degree and this angle is theta, then can I say angle DBC, ये visible नहीं होगा, wait, let me change the color. Can I say angle DBC is equal to 90 minus theta? ये वाला एंगल अगर मेरा थीटा है और ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री है, तो एंगल DBC will be how much? 90 minus theta. Now there is a very interesting situation here. ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल नंबर, एक ट्रायंगल हो गया मेरा ट्रायंगल DCB और दूसरा ट्रायंगल हो गया माई DBA. ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो मेरे सिमिलर हैं. क्यों है सिमिलर सर? बिकॉज एंगल DCB Angle property. इज इक्वल टू एंगल DBA जो कि थीटा है, ठीक है, एंड एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल BDA जो कि 90 डिग्री है. सो बाय एंगल प्रॉपर्टी these two triangles are similar.
अब जब सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो रेशियो लिख दो दोनों के बीच में. सो व्हाट वी विल हैव CD upon BD will be equal to BC upon BA and it will be equal to CD ले लिया फिर BC ले लिया will be equal to BD upon AD. So from here I'm getting a very interesting relation. अगर मैं इस वाले को और इस वाले को अगर मैं combine करता हूं तो I'm getting a very interesting relation and that relation is, my dear, BD square is equal to AD multiplied by CD. BD square is equal to AD multiplied by CD. So this is a very interesting relation that I got here. Now what we will do is we will utilize this relation to solve the yesterday's question. Let us jump to yesterday's question first. Okay, ये relation सबको समझ में आ गया कैसे आया? ये रिलेशन सबको समझ में आ गया कैसे है? क्या है रिलेशन? द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द पार्ट्स इन विच इट डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ द पार्ट्स इन विच इट डिवाइड्स द हाइपोटेन्यूज. BD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाय CD. ठीक है, ये रिलेशन प्लीज समझ में आ गया सबको? प्लीज कंफर्म से यस और नो. Yes, sir. ठीक है, चलो. now what we will do is we will straight away jump to the previous question. हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए. Sir, can you show the last question for 2 minutes? Right. This is the relation. See, I don't give you time to write or anything because I straight away upload the recordings. तो मैं ये नहीं चाहता कि we keep on wasting the time. लिख लो इसको या ये करो वो करो. वैसे 1 घंटे का टाइम होता है तो 1 घंटे का टाइम कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता. एटलीस्ट मुझे तो नहीं चलता. आप लोग को चलता हो, मुझे तो नहीं चलता. ठीक है, ये हो गया. Yes, sir. चल अब हम लोग उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे. कहाँ गया भाई वो क्वेश्चन? जैन साहब ने आंसर दिया था उस क्वेश्चन का 80 स्क्वायर यूनिट्स. एक और बच्चे ने आंसर दिया था उस क्वेश्चन का 80 स्क्वायर यूनिट्स. एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि दोनों लोगों ने सही आंसर दिया है. बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ठीक है, जस्ट अटेम्प्ट. यू गाइस हैव 2 minutes for it. Wasting the time, I will just discuss this question and I will show you कि जो अपन ने अभी एक एप्लीकेशन पढ़ा था उसका यूज क्या है. देखो भाई, एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से. अरे यार ये तो देखो भाई, एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके. कोई मुझे बता सकता है ये क्यों होता है ऐसा? फिर हो जाएगा. कोई मुझे बताएगा why this problem happens? जब भी मैं ऐसे करता हूँ ये इस वाली शीट में स्लाइड पर मैं अनेबल टू राइट. मे बी माई स्ट्रोक साइज इज लार्ज और क्या है समझ में नहीं आ रहा. चलो देखो एक बार और ट्राई करते हैं. अदरवाइज इफ आई एम अनेबल टू राइट देन आई विल डू समथिंग एल्स. देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से. ओके, समझ गया क्या प्रॉब्लम थी. एंड दिस ए बी एंड सी एंड दिस एंगल बी इज 90 डिग्री. बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने डी पे एंड दिस BD इज आल्सो 90 डिग्री. ठीक है, अब मुझसे क्या पूछना है कि AB इज 4√5. बहुत अच्छी बात है सर. AD इज 4. AD इज 4. बहुत अच्छी बात है सर. अब मेरे से पूछा है कि what will be the area of triangle ABC. So can I say that अगर AB मेरा 4√5 है तो what I will do is first of all I will calculate this BD. This BD, this length of BD will be equal to 4√5 whole square
BD square will be equal to 4 root 5 whole square minus 4D square, which is equal to 8 square, which gives me BD is equal to 8. यहां तक सबको समझ में आ गया मैंने BD की वैल्यू कैसे निकाली बेटा? I just use the Pythagoras theorem in this triangle where angle BDA is 90 degree. This angle is 90 degree. I just used the Pythagoras theorem here, and from there I got that BD square is equal to 64, which is equal to 8 square. So BD is equal to 8. Now what I will do is, still I need either I need BC or I need CD. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि I just have only one variable here. I know only one thing here and I have two variables. एक मेरे को CD भी नहीं पता, एक मेरे को BC भी नहीं पता. Now what I will do is I will utilize the formula that we have just learned. What I will do here is I will write BD square is equal to AD multiplied by CD. So CD will be equal to BD square divided by AD. So I got it 8 into 8 divided by 4. Now it becomes 8 to the 16. So my CD is equal to 16. अब CD 16 मिल गया मेरे को, AD मेरे को 4 मिल गया, तो my AC is equal to 20. Now my area of triangle ABC will be equal to half into this BD was 8 into 20. So it becomes 80 square units. It becomes 80 square units. ABC cut इस ABC triangle का area half into AB into BC भी हो सकता है. इस ABC triangle का area it can be half into BD into AC. So solve करोगे तो you will get this as 80 square units. ठीक है? So this was the way in which this question can be solved quickly. I don't know how you guys have solved. क्या किसी और के पास? Yes, please tell me how you can find the area without calculating BC. Please tell me. So we know certain triangle ADB and ABC, angle A is common, and angle ADB the two triangles are is equal same. to angle. The two triangles so are that- similar. Yes. Yeah, and then the sides are proportional, so we will get that AD upon AB will be equal to BD upon BC. So putting the values, we get BC equal to 2 root 5, and the area of the triangle is half In base fact, into height. in fact, you can do one more thing. Once you calculated the value of BD, now you know that this triangle ABD is proportional to this bigger triangle ABC. तो अगर वहां से आपको साइड्स का रेशियो पता चल जाए, एरिया विल बी द स्क्वायर ऑफ द साइड्स रेशियो. From there also you can calculate this question. What I am trying to say here is, let me do something. What I am trying to say here is, my dear students, देखो ये हमारा ट्रायंगल, अरे यार ये फिर परेशान करेगा. ये हमारा ट्रायंगल ABC था, ठीक है? This angle was ABC, okay, and this angle is 90 degree. Fine. Now what I'm saying is, these sides you know, this is 4 root 5, this is 4, this is 8, okay, and you also know that this triangle ABD will be similar to triangle ABC. और सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो क्या होता है? साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है. तो यहां से also you can calculate it very easily. From here also you can calculate. Just try, एक बार ट्राई करना आप लोग, क्या इस तरीके से भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ऐसा मत सोचना कि सर ने बोल दिया तो आएगा ही. हो सकता है सर ने कुछ गलत बोला हो, कर सकते हैं, सर बहुत बदमाश है, सर गलती कर सकते हैं. तो जस्ट ट्राई कि क्या सर ने ऐसा तो नहीं कुछ गलत बोल दिया हो, छोटा बच्चा समझ के आप लोग को मामू बना दिया हो. तो एक बार ट्राई करके आना कि मैंने जो बोला कि एरिया ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. अब आपको वेरीफाई क्या करना है, पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि मुझे वेरीफाई क्या करना है. आपको ये वेरीफाई करना है, योर फर्स्ट टास्क दैट यू नीड टू वेरीफाई इज ट्रायंगल ABD
Is triangle ABD similar to triangle ABC? This is your homework. I will ask you in the next class, it is tomorrow. क्या ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC दोनों सिमिलर थे, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा? उसके बाकी, उसके अलावा की तो सारी स्टेटमेंट जो है वो दैट इज ए वेल प्रूवन फैक्ट, बट ये जो स्टेटमेंट है ये दिस यू नीड टू वेरीफाई, क्योंकि हो सकता है मैंने स्टेटमेंट गलत बोल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. ABD will be similar to ABC, no? Yes, यार sir. देखो, ये गलत बात है, मैंने कल बताने के लिए बोला है। आप लोग इस तरीके से नहीं बात कर सकते ना, आपको कल बताना है। Sorry, sir. ठीक है ना, आपको कल बताना है, जस्ट थिंक ओवर इट। चलो चलो, अब इस क्वेश्चन को अगर जो मैंने बोला वो मैंने सही बोला, तो इस क्वेश्चन को करके बताओ मेरे को, बाय यूजिंग दैट कंसेप्ट ऑफ एरिया स्क्वायर ऑफ द साइड्स। कम ऑन फास्ट, इसका आंसर जल्दी देना यार, कि आज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आई हैव सम 20 क्वेश्चंस फॉर यू गाइस टुडे। चलो वैसे टुडे इज, आज का दिन की कुछ खास बातें बताए। Pi day. Pi day, yes. ए, ओके, रेशियो निकालना है ना, ठीक है। बीडीसी और एबीसी, आइंस्टीन्स बर्थडे इज टुडे। ओके, आई वाज थॉट डूइंग दैट कि आज आइंस्टीन का बर्थडे। Okay, you guys solve. I'm also trying to write something. What's all? कितना है भाई आंसर? 16:25. 16:25. Even I got 16:25. तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन।
मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे किया, बट मैंने क्या किया बेटा, देखो मैंने क्या किया, ध्यान से समझने की कोशिश करो, शायद ही आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। मैंने जो लिखा यहाँ पे, मैंने डायरेक्टली एक रिलेशन लिखा यहाँ पे, मैंने डायरेक्टली एक रिलेशन लिखा यहाँ पे कि ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कैसे कह दिया सर मैंने ये बात? मैंने ये बात ऐसे कह दी बेटा कि देखो ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, एंगल C तो दोनों में कॉमन है, एंड एंगल BDC जो है यहाँ पे वो 90 डिग्री है, एंड एंगल ABC इज 90 डिग्री। So these two angles are 90 degree and angle C is common. So these two triangles are similar to each other. जब दोनों triangles similar होंगे एक दूसरे के, तो इनका जो एरिया होगा, इनका जो एरिया होगा वो साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल साइड्स का स्क्वायर लिखा मैंने, तो आई गॉट BD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब मेरा टास्क यहाँ पे ये था कि मुझे BD स्क्वायर निकालना था। ठीक है, अब BD स्क्वायर निकालने के लिए या तो देखो आपको अगर ब्रेवरी का अवार्ड जीतना है, अगर आपको परमवीर चक्र जीतना है, I'm sorry, I should not have used this word Paramveer Chakra, but because it is for the decorated officers. But अगर आपको से अनिमेश ब्रेवरी अवार्ड जीतना है, अनिमेश ब्रेवरी चक्र जीतना है, तो आप 7.5 का होल स्क्वायर निकाल दो और उसके बाद 4.5 के होल स्क्वायर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। या अगर आपको ये चक्र नहीं जीतना तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे यू कैन डू इट लिटिल बिट इंटेलिजेंटली। आपको 7.5 होल स्क्वायर माइनस 4.5 होल स्क्वायर निकालना था। यू कैन यूटिलाइज द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So it will be 7.5 plus 4.5 is 12 multiplied by 7.5 minus 4.5 is 3, और इसका अंडर रूट लेना बहुत आसान होता है, दिस इज इक्वल टू 6। ऐसे भी नहीं समझ में आया तो एक काम और कर सकते हो, आप 7.5 को 15/2 लिख सकते हो एंड 4.5 को 9/2 लिख सकते हो। यहां से आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो यू विल आल्सो गेट फ्रॉम हियर BD इज इक्वल टू 6। तो मैंने BD को दोनों मेथड से कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया कि दैट BD इज इक्वल टू 6। अब BD अपॉन AB का रेशियो ले लो, 6/15/2, that comes out to be 4/5, which simplifies and it gives you 16/25. So the ratio will be 16/25. ठीक है? Somebody was saying something. Let me. Okay. Sir. Next question is. ये क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने कल? The ratio of areas of AOB and COD. नहीं, ये क्वेश्चन नहीं किया था। AOB और COD का रेशियो जल्दी बता दो यार, आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा रेशियो? Sir, for last option. Yeah, last option. Everyone So 9:4. Everyone is agree with the fact that it will be 9:4 because Yes. triangle AOB will be similar to triangle COD। क्यों हुआ सर ऐसा, आपने कैसे कह दिया सर? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का जो ट्रांसवर्सल होता है और फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड दिस एंगल इज कॉमन। और तीसरा एंगल ये वाला भी है भाई, ये इसको क्यों छोड़ रहे हो, ये भी इक्वल है। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी और बाय एंगल 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 सिमिलरिटी दीस टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। सिमिलर होंगे तो रेशियो लिख दो, सिमिलर होंगे तो रेशियो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम। आपसे एरिया का रेशियो पूछा है तो एरिया का रेशियो विल बी व्हाट, AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। अब यहाँ पे एक छोटी सी ग्लिच है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे 4:9 भी ऑप्शन में है, 9:4 भी ऑप्शन में, ये दोनों तो नहीं होंगे, ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि ये हमें पता है कि स्क्वायर होता है। बट यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच ये है बेटा कि 4:9 भी है ऑप्शन में, 9:4 भी ऑप्शन में, कौन सा लें? भाई देखने से पता चल रहा है ना कि AB हमारा बड़ा है, AB अगर बड़ा है तो AOB का जो एरिया होगा वो बड़ा होगा ना। तो एक बार अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि these two triangles are similar, then you can directly mark the answer। इसलिए बताया मैंने ये, क्योंकि ये देखो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर में nobody is going to check how you are calculating the question।
अब डायरेक्ट पूरा लिख के करो, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर ये रेशियो होगा, therefore since area of similar triangles is in the ratio of square of their corresponding side, तो इस तरीके से लिख के करो या डायरेक्ट करके मार्क करो, नंबर एक ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए टाइम बचाओ, आगे बढ़ो। मैं आप लोगों को ये चाहता हूं कि आप लोग दोनों तरीकों के लिए इक्विप हो। जब आप लोग बोर्ड एग्जाम दो मार्च 2021 में, तब जब आप लोग पेपर करो तो आपका एग्जामिनर आपको ही शुड बी कंपेल्ड टू गिव यू मोर देन 78 और 79 मार्क्स आउट ऑफ 80, ही शुड बी कंपेल्ड। दूसरा, जब आप लोग एनटीएससी का एग्जाम दो, आई डोंट नो इस पेंडेमिक की वजह से इस साल कब होगा ये एग्जाम, लेकिन लेट अस होप कि नवंबर में हो। तो जब आप लोग इस एग्जाम को दो तो आप क्वेश्चन देखो और आंसर करो। पता है आपको 20 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। मैं ये चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस इस लेवल की हो कि 20 क्वेश्चन को करने में आपको हार्डली 5 से 10 मिनट लगे। मैं ये चाहता हूं, दैट इज माय एम। चलो ये क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड, ये क्या हो गया? ए भाई ऐसा मत कर। चलो दिख रहा है ना सबको? फिगर विगर दिख रही है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चलो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। एक हम लोगों ने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे अपन ने एक रिजल्ट पढ़ा था, वो याद है किसी को? चलो नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं। चलो ट्राई करो। Guys have just देखते हैं, फोकस ऑन द क्वेश्चन। बच्चों एक थ्योरम मैंने आप लोगों को बताई थी, एक थ्योरम मैंने मुझे पता है आप लोग कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन, आई नो। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने बहुत प्यारे से छोटे से इनोसेंट से बच्चों, आप लोगों ने क्या किया होगा कि आई एम वेटिंग ओनली। आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया होगा। कैसे लगाया होगा आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम? आप लोगों ने मान लिया इसको, सर इसको y मान लेते हैं और इसको अपन x मान लेते हैं। फिर एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लेंगे, एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लेंगे। तो x और y से रिलेटेड मुझे दो इक्वेशन मिल जाएगी और उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। और फिर जो है मैं आप लोगों को अनिमेश वीरता अवार्ड से नवाजूंगा। फिर मैं आप लोगों से को अनिमेश वीरता अवार्ड से नवाजूंगा। ओके, आई गॉट आंसर सी फॉर 3 cases. I don't know whether the answer is correct or not, but we will verify. तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो मैं आप लोगों को अनिमेश वीरता अवार्ड दूंगा। लेकिन एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी कुछ दिनों पहले, जिस थ्योरम का नाम था एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन द केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या थी सर वो थ्योरम? देखो ध्यान से, ये एंगल जो है दिस इज मोर देन 90 डिग्री, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये बात सबको समझ में आती ही है, ऑब्वियसली आती है। सो नाउ व्हाट आई विल हैव इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC मल्टीप्लाइड बाई CD। नहीं अगर याद है ये थ्योरम को तो बोलो, मैं आप लोगों को ये थ्योरम दिखा देता हूं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC इंटू CD। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर ले लो, खत्म करो, आगे बढ़ो। AB स्क्वायर इज 16,
16 square is equal to AC square is 6 square plus this BC square is 12 square plus BC is 12 into X. सॉल्व करेंगे, दिस इज 36, दिस इज 144. 144 में जब मैं 36 को ऐड करूंगा तो द रिजल्ट दैट आई एम गेटिंग इज 144 में जब मैं 36 को ऐड करता हूं 180. 180 और जब मैं 180 में से 16 स्क्वायर इज 256, तो 256 माइनस 180 करूंगा तो 20 इधर और 56 इधर, तो आई विल गेट 76 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स. सॉल्व कर दो, सो आई विल गेट 24 into x होगा. 24 इंटू एक्स होगा. आर यू श्योर? 2 into BC into CD था वो. हाँ सर, 2 into BC into CD हो. ठीक है. सो 16 स्क्वायर will be equal to 6 square plus 12 square plus 2 into 12 into CD. सॉल्व कर लो भाई. तो 16 स्क्वायर इज 256, इन दोनों को ऐड किया था तो हमारे पास आया था 180. सो 256 minus 180 is equal to 2 into 12 into CD. So this will be 76 upon 2 into 12 will be equal to CD. So अगर इसको कैंसिल कर देंगे so this will be 38 है ना. ये 38 हो गया और उसके बाद ये कैंसिल करेंगे तो this will become 19/6. So the answer was 19/6. अब आप लोगों ने आई थिंक आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ही सॉल्व कर रहे होंगे, तभी इतना टाइम लगा है, क्योंकि आप लोगों के लेवल को देखते हुए इतना टाइम लगना नहीं चाहिए. अब देखो ये क्वेश्चन तो आ गया एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में. अगर मान लो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता तो भी इस क्वेश्चन को अपन मॉडिफाई करके दे सकते थे. एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है. सो ये थ्योरम्स हैं बेटा, ये थ्योरम्स हैं, ये दीस थ्योरम्स आर योर टूल्स. जब आप एग्जाम में जाते हो तो कितने टाइप के पेन यूज करते हो? एक रेड हो गया, एक ग्रीन हो गया, एक ब्लैक हो गया, एक ब्लू हो गया, उसके अलावा स्केच पेन हो गए. सारी चीजों को यूज करते हो ना, लेकिन लिखते तो ब्लू पेन से ही हो. तो दीज आर योर स्केच पेन एंड योर एडिशनल पेन्स. इन पेन्स को और इन स्केच पेन्स को यूज करो, ट्राई टू यूज इट. कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं होगा, किसी भी एग्जाम का सिलेक्शन बड़ा नहीं होगा, चुटकियों में सिलेक्शन होगा, गारंटी देता हूं इस बात की. बैठे बैठे सिलेक्शन होगा, हंसते हंसते, पता भी नहीं चलेगा कब सिलेक्शन होगा. क्या बोल रहे हो? अभी क्या बोल, मैंने अभी क्वेश्चन आप जो हाँ सर अभी जो आप बोल रहे थे वो एक बार रिपीट कर सकते हैं? मेरा थोड़ा वो लैग हो रहा था. ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, उसके बाद तो थोड़ा सा मोटिवेशन था. दैट मोटिवेशन आई थिंक यू शुड नॉट लिसन अगेन. ठीक है. ये क्वेश्चन जब एक्सप्लेन किया था तब आपको सब कुछ क्लियर था, वो वहां पे सारी आवाज क्लियर थी आपको? यस सर. ठीक है. उसके बाद का मोटिवेशन है, जब कभी फ्री बैठना तो रिकॉर्डिंग देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां मैंने क्या बोला. चलो ट्राई दिस क्वेश्चन. हाँ, मैं वो एक क्वेश्चंस डायरेक्ट एनटीएससी के एग्जाम से, मतलब डायरेक्ट पेपर से उठा के लेकर आया हूं, बिकॉज आई डोंट वांट दैट यू शुड हैव फियर इन योर माइंड कि क्या है, अरे ये कैसा क्वेश्चन आता है एनटीएससी में. देख लो भैया, एनटीएससी के क्वेश्चन है, आप ही सॉल्व कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा ना. आप ही सॉल्व कर रहे हो ना, तो करो. चलो. ट्राई.
ओह अच्छा, मुझे लगा आंसर है, आंसर भी। ठीक है, जब मुझे जल्दी जल्दी आंसर्स मिलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, रियली आई फील वेरी वेरी नाइस जब मेरे को जल्दी जल्दी आंसर मिलते हैं। देखो, कैन आई से दैट एरिया ऑफ triangle ADE divided by area of triangle ABC is equal to 1:4? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? The correct answer of this question will be D, 2:1. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि area of triangle ADE divided by area of triangle ABC is equal to 1:4? यस, मैं ये बात कह सकता हूँ क्योंकि हमें ऐसा दिया हुआ है कि this DE is parallel to BC. That means I can straight away say that this triangle ADE is similar to triangle ABC. क्यों सर, ऐसा कैसे कह दिया आपने? ऐसे कैसे आप जबरदस्ती कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकता बेटा? एंगल ए जो है वो कॉमन है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स क्या होगा? सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बेटा, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा और इस पूरे वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो दोनों क्या होंगे? स्क्वायर्स के साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल होंगे। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इन्होंने क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल DECB इज इक्वल टू 1:3। यानी कि अगर इस वाले पार्ट का एरिया 1 यूनिट है तो इस वाले पार्ट का एरिया 3 यूनिट्स होगा। तो कैन आई से दैट एरिया ऑफ, see here I am talking about ratio, so I don't want to calculate, I don't need the exact value. So area of triangle ADE divided by area of triangle ADE plus area of DECB is equal to 1/1 plus 3, which is equal to 1/4. ये मैंने यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया। एंड this DECB plus ADE is nothing but ABC, so this is equal to 1/4. अब जब एरिया का रेशियो 1/4 हो गया तो साइड्स का रेशियो क्या होगा भाई? 1:2 होगा या 2:1 होगा? वो आप यहाँ से देख सकते हो। BC जो है वो DE से बड़ा है, तो ऑब्वियसली द रेशियो कैन नेवर बी 1:2. The ratio can never be 1:2, so the ratio will be 2:1 only. 16:1 का तो खैर कोई चांस ही नहीं है, वो तो आप एरिया के रेशियो का भी स्क्वायर कर रहे हो, तो 16:1 का तो खैर कोई चांस ही नहीं है। So the ratio will be either it will be 2:1 or 1:2, so it will be 2:1. ठीक है, अब यहां तक करने के बाद भैया रेशियो में गलती मत करके आना कि 1:2 था सर, मैंने 2:1 मार्क कर दिया, 1:2 था तो 2:1 मार्क कर दिया, ऐसा मत करके आना बेटा। ऑल द क्वेश्चंस आर इजी, नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस आर इजी। यू कम विथ ए क्वेश्चन जो आपको लगे कि सर ये क्वेश्चन तो टफ है, आई विल सॉल्व यू एंड आई विल, जस्ट ए मिनट, You come with a question जो आपको लगे कि सर ये क्वेश्चन टफ है, I will solve that question and I will prove that कि हाँ वो सवाल इजी है। बट हाँ एक कंडीशन है यहाँ पे, there is one condition कि ऐसा नहीं कि अब 10th क्लास में पढ़ रहे हो और 11th क्लास का और 12th क्लास का और हायर लेवल का इवन BSc लेवल के आप ट्रायंगल के क्वेश्चंस लेकर आ जाओ। नो, दिस इज अ कंडीशन, you talk to me regarding the things here only, क्योंकि वो क्वेश्चंस I will explain, बट आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो। द टाइम अलॉटेड टू यू इज, कितना बज गया? 3 मिनट्स। द टाइम अलॉटेड टू यू इज 3 मिनट्स, फटाफट। वैसे एनटीएससी के क्वेश्चंस 1 मिनट में होने चाहिए, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ आंसर आ जाना चाहिए। गुड।
24। ठीक है, एकदम सही है। योर आंसर इज द आंसर दैट यू गेव इज परफेक्टली ऑल राइट। सी आई एम नॉट यूजिंग एनी पेन, मेरे पास कोई पेन वैन नहीं रखा हुआ है। नीदर आई एम यूजिंग एनी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई कैलकुलेटर रखा हुआ है दैट विद दैट आई एम कैलकुलेटिंग द क्वेश्चन। मैंने ओरली सॉल्व किया इस क्वेश्चन को आपके सामने। गुड गुड। आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन समथिंग। अगर मेरे इफ ऑल द थिंग्स गो करेक्टली, तो आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ना, इन दैट आई विल आल्सो सी हाउ मच टाइम यू टुक टू सॉल्व द क्वेश्चन। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि इस क्वेश्चन में आपने 5 मिनट लगा दिया और बहुत खुश हो गए। अगर 5 मिनट लग रहा है इस क्वेश्चन में तो मत करो भाई, जरूरत नहीं है। Why only 2 answers? Where are others? Come on, fast. Good. 3 आंसर और चाहिए। देखो मैंने कुछ लोगों को प्राइवेटली मैसेज किया है, आंसर दो जल्दी। एरिया निकालने की क्या जरूरत है? ये भगवान, चलो देखता हूं, बताता हूं। ओके फाइन। देखो क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं जिनका एरिया जो है वो 2 1/4 के फॉर्म में है। तो इस एरिया को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। लेट अस सी व्हाट आई कैन राइट is to 1. So this I can write as 8. 2 into 4 is 8. 8 plus 1 is 9. So 9/4 is to 1, which is equal to 9:4. So my area का जो रेशियो होता है बच्चों वो 9:4 होता है। जब मैं आप लोगों को पेरीमीटर और सिमिलर ट्रायंगल पढ़ा रहा था, जब हम लोग पहली या दूसरी क्लास में थे, तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके साइड्स का रेशियो उनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल भी होता है, बताया था। कोई ये मत बोलना कि नहीं बताया था, ठीक है? अगर आप लोग ऐसा बोलोगे, अगर आप लोग नहीं मानोगे कि सर नहीं बताया था, तो देख लो भाई। मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल डीईएफ है, ठीक है? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो अब देखो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं करने वाला हूँ। AB/DE is equal to BC/EF is equal to AC/DF। सपोज करो दिस रेशियो इज इक्वल टू K, ठीक है? मान सकता हूँ रेशियो है, मान सकता हूँ। सो AB विल बी इक्वल टू K into D, BC will be equal to K into EF and AC will be equal to K into DF, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, पेरीमीटर्स का रेशियो लेना है। सो व्हाट आई विल हैव इज, देखो AB plus BC plus AC divided by DE plus EF plus DF will be equal to K times of K times of DE plus EF plus DF divided by DE plus EF plus DF। ये दोनों कैंसिल हो गया तो रेशियो आ गया K, which is equal to AB/DE। So from here I can say, what I can say sir is, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, मैं इसको रब करने वाला हूँ। Okay, I'm rubbing this, huh? So what I can say here is, sir, what I can say here is area of side ratio is also equal to perimeter ratio.
साइड रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू पेरीमीटर रेशियो। ये चीज मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में बताई थी, ठीक है। दिस वाज ए कोरोलरी। तो साइड रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू पेरीमीटर रेशियो। अब मेरे पास, और साइड रेशियो क्या होता है? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एरिया रेशियो। Side ratio is nothing but square root of area ratio. So from here I can say perimeter का ratio is equal to square root of area ratio। कह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। तो अब पेरीमीटर का रेशियो एक बड़े वाले ट्रायंगल का 36 है, आई मीन 36 है। छोटे वाले ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है दैट इज से P, 36 upon P will be equal to 9:4 का square root, which is equal to 3 upon 2. So from here I can say P is equal to 36 into 2 upon 3, which is equal to 24. Sorry, 24. So this is how we were about to solve this question. ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। somebody was saying something also, देख लेते हैं man. Yeah, no, it will not be 16, it will be 24. I hope ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हो। Anybody wants to ask something in this question? चलो, नहीं पूछना है किसी को तो just we will move ahead, huh? Okay, this was the space that was left intentionally blank. इस क्वेश्चन को करो। The time that you have for this question is 3 minutes. Fast.